fourth episode of Let's Optimize podcast series. And today we have Naman Sharma with us as our guest, the first guest in this podcast series. So, Naman is the co founder of Fitso. Fitso is a sports and fitness startup. It was started in 2015 and it was acquired in 2021 by Zomato in over 100 crore rupees. And so Fitso was later sold out to Cult, where it is one of the leading revenue generators for them. So Naman did his BTech from IIT Delhi in 2011 and then joined Zomato. And apart from that, Naman loves to play football. That is something which is that we all know. So, Naman, welcome to the podcast. How are Hi, you? Pujan. Great to be here with you today. Great. So basically, we will go through the journey of Fitso, and we'll try to extract some valuable lessons for our viewers and listeners. Cool. Sure. So, Naman, tell us something about how Fitso was started. Yeah. So basically, Fitso we started in 2015. So and it was me and a couple of batchmates from IIT Delhi, Mhm. Rahul and Saurabh. And so to give you a little bit of our background, we were all like very close friends during our engineering days, and we were like hugely interested into startups like since our college days, and we it was a very common topic of discussion amongst us, like what kind of startups we can build, what startups were doing at that time, because that was the time when Flipkart and Zomato, these were just sort of starting to come through. Right. And uh, so that was a very exciting thing for us to see that something could be built and scale up to such a great extent, Mhm. and anybody can do it. And then after college, we all joined startups. Okay. So I joined Zomato, as you mentioned, after college, Right. which was a very young startup at that time, just 20 people in Zomato. Saurabh joined Flipkart, Right. राहुल ज्वाइन Yapme. तो Right. हम तीनों ने स्टार्टअप्स में ही काम किया, और वहाँ पे जाके अगले 3-4 साल हमने जो वहाँ पे काम किया उससे हमने बहुत सारे लेसन सीखे Right. कि स्टार्टअप कैसे बिल्ड किए जाते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, Mhm. कैसे आप फंड रेजिंग करते हो, कैसे आप यूजर एक्विजिशन करते हो, कैसे आप प्रोडक्ट बिल्ड करते हो। Right. एंड 4 साल करने के बाद ये जर्नीज अपनी Mhm. 2015 में हमारे को लगा कि अब हमने सीख लिया है, जो कि काफी होना चाहिए कि हम खुद प्लंज ले सकें अपना स्टार्टअप चालू करने के लिए। Right. एंड उस टाइम हमने ये रियलाइज किया कि हेल्थ और फिटनेस एक ऐसी चीज है जो कि हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में काफी मिसिंग हो रही है, Mhm. जिसकी ज्यादा से ज्यादा और रिक्वायरमेंट आती जा रही है, गिवन जो हमारे लाइफस्टाइल्स हैं, जो हमारे वर्क शेड्यूल्स हैं, बहुत ही हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट में लोग काम कर रहे होते हैं। Right. तो इस सबको देखते हुए हमने कहा कि हेल्थ और फिटनेस एक ऐसी स्पेस है जिसकी दुनिया को बहुत सख्त जरूरत है, Right. एंड इसमें हमारा इंटरेस्ट भी लाई करता था। जैसा आपने बताया, मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, Mhm. सौरभ का भी एथलेटिक्स एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो हमने कहा Right. कि हम हेल्थ और फिटनेस को ये अ, इस एंगल से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, एंड ये हमारे पैशन के साथ भी अलाइन होता है। Right. Cool. So, फिर सो स्टार्टिंग जर्नी से मेरा ये मतलब था कि जैसे व्हाट वाज द फर्स्ट सेट ऑफ एक्शंस, मतलब क्या क्या, लाइक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए जैसे आइडिया आया, उसके बाद फिर क्या क्या स्टेप्स लिए टू मेक इट अ रियलिटी, लाइक बिकॉज आइडियाज तो बहुत सारे लोगों को आता है, सोचते क्या हम्म। करना है, बट हम्म। व्हाट इज दैट वन थिंग और लाइक मेनी थिंग्स दैट जिसको करने से यू कैन actually convert your idea into a reality. So like what was that like? तो बेसिकली तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए, जो हमने भी किया है, इसकी आप अपने आइडिया पे क्लैरिटी लेके आए कि आप एक्चुअली क्या बिल्ड करना चाहते हैं, Hmm. और कौन सी ऑडियंस है जिसको कि आप टारगेट करना चाहते हैं, Right. और अपने प्रोडक्ट से उनको कैसे आप हेल्प कर रहे होंगे। Okay. तो हमने लाइक द फर्स्ट स्टेप वाज टू गो एंड मीट द ऑडियंस, Okay. उनसे थोड़ा समझना कि आज की तारीख में क्या चल रहा है। वो Mm-hmm. आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स के नेटवर्क में, Mm-hmm. हमारे लार्जर सोशल नेटवर्क में।
सोसाइटीज में आपस आसपास जो लोग रहते हैं से हमने समझा कि क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं अपनी हेल्थ और फिटनेस जर्नी में। एंड फिर उसके साथ हमने अब ये दूसरी साइड के स्टेक होल्डर से समझा, जो आपके बिजनेसेस हो गए, जो आपके राइट। स्पोर्ट्स कोचेज हो गए, जो आपके फिटनेस कोचेज हो गए, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, ये सब लोग हो गए, कि उन लोगों को क्या चैलेंजेस आते हैं ओके। और क्या हम इन दोनों चीजों को कंबाइन कर सकते हैं एक अच्छा सॉल्यूशन बना के, जो कि लोगों की लाइफ में कुछ हेल्पफुल चेंजेस लेके आता है। Right. This is very important actually. Right. Okay. Cool. Got it. So, idea is kind of tested, not validated maybe, but आप you have मतलब डिमांड साइड बेसिकली जो लोग सप्लाई जिनको फिटनेस की सर्विसेज चाहिए उनसे बात कर ली, हम्म और जो बिजनेसेस हैं जो कि जैसे कोचेस हैं और जो बिजनेसेस हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनसे बात कर ली, एंड यू रियलाइज कि देर इज सम नीड दैट वी कैन सर्व, राइट। राइट। इसके बाद हाउ डिड यू गो अबाउट बिल्डिंग द टीम? हम्म टीम कैसे राइट। बनाई? टीम का हम काफी लकी रहे इस सेंस में कि हमारे को अपने आसपास में ही, अपने फ्रेंड सर्कल में ही, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो कि अगेन हमारी तरह स्टार्टअप एंथुजियास्ट थे, एंड ओके। जो कि हमारे साथ काम कर चुके थे थ्रू आवर जर्नीज एट जोमेटो एक्सेट्रा, ओके। और हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे कॉलेज के या हमारे जूनियर्स थे कॉलेज के, जो भी एक स्टार्टअप का एक्सपीरियंस लेना चाहते थे। राइट। तो हमने अपने ये फ्रेंड्स नेटवर्क में फ्लोट किया आईटी के, कि भाई हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एंड हमारे से 3-4 लोगों ने हमारे को ज्वाइन कर लिया, ओके। जोमेटो से 3-4 लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया। ओके। तो हमारी इनिशियल टीम तो एकदम बहुत क्विकली एंड बहुत ही लो एफर्ट से एक अपने क्वेश्चन आ रहा है मुझे, जोमेटो से ज्वाइन कर दिया लोगों ने तो दीपी को फाइट नहीं हुई? नहीं, फाइट तो आई डोंट नो, अब उस पर हमारा डिस्कशन तो नहीं हुआ कि हुई कि नहीं, बट मतलब आई ओके। थिंक उन्हें भी पता है जैसे कोई भी हाँ स्टार्टअप का ऑब्वियसली, फाउंडर है। मतलब ही मस्ट बी नोइंग। हाँ, तो इट इज लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस, लाइक राइट। कि लोग नई चीजें ट्राई करना चाहें, राइट। एंड अपने एंड ही इज क्वाइट लाइक इनकरेज, काफी इनकरेज भी करते हैं दीपी, राइट। 100% या तो आई ये मेरे को लगता है कि कोई भी फाउंडर है, जो भी स्टार्टअप के फाउंडर खुद रहे हैं, वो हमेशा मैंने पाया है कि दूसरे राइट। को स्टार्टअप जर्नी में इंकरेज ही करेंगे, डेफिनेटली राइट, आई एग्री। दे हैव बीन इन द सेम बोट। राइट। कूल। सो ओके, टीम टीम भी बन गई। नाउ द नेक्स्ट स्टेज, और नॉट द नेक्स्ट स्टेज बट इन जनरल, सो बेसिकली किसी भी स्टार्टअप में जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ गोल्स होते हैं, राइट। और हाउ डू यू सेट दैट गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लाइक लेट्स से कि हम एक साल में क्या कर लेंगे, थोड़ा ब्रॉड आइडिया, नॉट कॉर्पोरेट गोल सेटिंग इज डिफरेंट, बट एक स्टार्टअप में गोल्स कैसे सेट करते हैं, लाइक हाउ डिड यू सेट योर गोल? गोल से रिलेटेड फिर ये क्वेश्चन आता है कि अगर गोल सेट हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट करने का प्लान कैसे बनाया आप लोगों ने? राइट। एंड देन अगर प्लान बना है तो फिर उसको ट्रैकिंग कैसे की? सो बेसिकली गोल गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड ट्रैकिंग, ये कैसा रहा इनिशियल इनिशियल स्टेजेस ऑफ फिट्स में? बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि स्टार्टअप में जब भी आप गोल सेटिंग करते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, स्पेशली बहुत अर्ली स्टेजेस में, तब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बहुत डायनेमिक रहें, मतलब बहुत क्विकली आप चीजों को एनालाइज करें, और क्विकली अगर कोई चीज सही नहीं हो रही तो चेंज करें, मतलब उसके लिए बहुत ओपन रहें। दैट राइट। डायनेमिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द बिगिनिंग ऑफ एनी स्टार्टअप जर्नी, क्योंकि सब कुछ नया है आपके लिए, सब कुछ नया होने वाला है, आप कुछ चीजें सोचेंगे वो नहीं वर्कआउट होंगी, तो आप कैसे चेंज करना है उस सबके लिए तैयार रहें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमिंग टू एक्चुअली क्या गोल सेटिंग करिए और कैसे प्लानिंग करी, वो तो बेसिकली जब आपने अपना पहला काम किया जहाँ पे आपने यूजर से बात करी, और जहाँ पे आपने उनको हेल्प करने वाले बिजनेसेस से बात करी, उस अंडरस्टैंडिंग से आपने एक अपना हाइपोथेसिस बनाया कि ये सर्विस मैं बिल्ड करने वाला हूँ, ये प्रोडक्ट मैं बिल्ड करने वाला हूँ, एंड इससे हमारे कस्टमर्स को मदद मिलनी चाहिए, उनकी जर्नी हेल्प होनी चाहिए। राइट। फ्रॉम दैट हाइपोथेसिस अब हमारे को सबसे पहले क्या चाहिए अर्ली स्टेज ऑफ स्टार्टअप में, कि हम इस हाइपोथेसिस को कैसे वैलिडेट करें कि ये ट्रू है कि नहीं है। राइट।
most cases में it will lie around a big number. Big number when I say is a top level metric हम जिसको बोलते हैं किसी भी business. broader. It will be around कि आपके यूजर्स कितने ज्वाइन कर पा रहे हैं. It will be around कि आप कितना उनकी लाइफ में चेंज लेके आ पा रहे हो या कितना रेवेन्यू कमा पा रहे हो. Right. 2-3 टॉप लेवल मेट्रिक्स में से ही कोई एक सबसे पहला वैलिडेटिंग मेट्रिक आपका बनेगा. Right. तो केस में था कि क्या हम अपने प्लेटफॉर्म पे यूजर्स लेके आ पा रहे हैं कि नहीं. तो हमारे प्लेटफॉर्म को ट्राई करें. Right. ट्राई करें जिससे कि हमारे को ये समझ आ जाएगा कि अगर नीड है ये वैलिडेट हो जाएगा. अगर नीड नहीं होगी तो बंदा ट्राई भी नहीं करेगा. Right. अगर एक बार ट्राई कर रहा है मतलब नीड है कहीं ना कहीं. हम्म. चाहे वो उससे अच्छी तरह ना यूज कर पाए, मतलब कहीं पे हमारे प्रोडक्ट में हो सकता है कमी हो, बट दैट नीड इज देयर सो ही इज ट्राइंग. Right. तो हम खुद अपनी सर्विस ट्वीक करके उसको सोल्यूशन दे सकते होंगे अच्छा. हम्म. तो आवर फर्स्ट मेट्रिक वाज कि हाउ मेनी यूजर्स कैन वी गेट ऑन आवर प्लेटफॉर्म. Okay. एंड फिर उसको प्लान करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए थी कि हम कैसे कॉस्ट इफेक्टिव वे, कैसे सबसे बिना पैसा खर्च करे सबसे फ्रूगल वे में कैसे ये कस्टमर्स को लेके आए. Right. एंड सबसे टारगेटेड कस्टमर कैसे लेके आए. हम्म. क्योंकि हमें लगता है कि इनकी लाइफ में अभी मैक्सिमम नीड है इस चीज की, उनको कैसे टारगेट करें. Right. ये हमने करा आई वुड से सोशल वे में, जहाँ पे हम खुद जाके लोगों से मिलते थे जो इन फिटनेस एक्टिविटीज में एंगेज कर रहे हैं. उनसे जाके पर्सनली मिलना, बात करना, रेफरल्स के थ्रू लेके आना. सो इट वाज वेरी वर्ड ऑफ माउथ, वेरी hyper-local social connect driven user adoption to start with. Okay. जिससे कि हमें पता रहे कि जो हम चाहते हैं उसी यूजर को लेके आए एंड एकदम फ्रूगल वे में लेके आए. Okay. So basically जो गोल था वो ये था कि प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आना है. राइट. एंड उसके लिए प्लानिंग भी यही थी कि बेसिकली पैसे खर्च नहीं करने हैं, डायरेक्ट कनेक्ट करके यू हैव टू गेट Right. दोज यूजर्स ऑन बोर्ड. Ultimately, जो मैं बोलूंगा ना वैलिडेशन फेज हमारा आइडिया का, राइट. राइट. ये वैलिडेशन फेज का हमारा टारगेट और एग्जीक्यूशन प्लान था. ओके. सो स्टार्टिंग में ये वाला फेज भी क्रॉस हो गया और यू गॉट द वैलिडेशन कि हाँ यूजर्स आ भी गए. उसके बाद फिर क्या टारगेट रहा, क्या फोकस रहा? नेक्स्ट फोकस था कि तो अगेन थोड़ा सा डिटेल में मैं बताता हूँ. तो हमारा पहला प्लान जैसे कि था कि सबसे एंगेज यूजर को या सबसे जो सर्विस के लिए सबसे आई वुड से पावर यूजर है उसको लेके आना. राइट. राइट. तो अब पावर यूजर्स आ गए, उनका एंगेजमेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है. एंड दिस इज समथिंग एवरीबडी विल फाइंड इन देयर स्टार्टअप जर्नी कि कोई एक पावर यूजर्स होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा यूज करेंगे. दे विल बी सुपर एक्टिव, दे विल बी रेफरिंग टू अदर पीपल, वो 10 जगह बात करेंगे उसके बारे में, आपको फीडबैक देंगे. ये यूजर्स के बाद एक नेक्स्ट लेवल ऑफ यूजर आता है जो कि उतना ज्यादा एंगेज यूजर नहीं होने वाला. इट्स द मोर कॉमन यूजर. तो अब हमारे को पावर यूजर से कई सारी लर्निंग्स बिल्ड हुई. अब हमारे को नेक्स्ट चीज ट्राई आउट करनी थी कि यार ये तो चलो बहुत ही हाईली इंथुजियास्टिक या फिटनेस ओरिएंटेड लोग हैं, ये तो हमारे प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा यूज करेंगे ही क्योंकि इनकी लाइफ ही फिटनेस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. बट क्या जो लोग उतने मोटिवेटेड नहीं है, जो उतने फिटनेस ओरिएंटेड नहीं है, वो लोग कैसे यूज करने वाले हैं इस प्रोडक्ट को? वो नेक्स्ट चैलेंज था समझना. तो तब हमने अपना एक फोकस शिफ्ट करा फ्रॉम टारगेटिंग लाइक वेरी फिटनेस ओरिएंटेड पीपल टू पीपल हु आर लुकिंग टू स्टार्ट देयर फिटनेस जर्नी. कि भाई मेरे को वेट लॉस करना है या मेरे को मसल बिल्ड करनी है, मेरे को जनरली फिट होना है. इन लोगों को अब अट्रैक्ट करना क्योंकि मासेस ही हैं. राइट. और हमारे पास कुछ लर्निंग्स थी जो कि हम इन पे अप्लाई कर सकते थे जो हमारे पावर यूजर्स के साथ चली थी. तो अब हमने कैंपेन्स चलाने शुरू करे, अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स यूज करने शुरू करे, थोड़ा पैसा स्पेंड करना शुरू करा कि हम एक एवरेज कॉमन बिहेवियर वाले इंसान को लेके आए एंड उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें. एंड अब तो हम कर पा रहे हैं, तो दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ वैलिडेशन फॉर द प्रोडक्ट टू स्केल इट अप.
So, uh, so your product was more on the, जो business था Fitso का, it was a mix of service plus uh, service plus the product which is the app, right? जी, Mostly राइट। mostly app के through वो हो रहा है. So how did you ensure customer satisfaction in terms of when it was uh, everything related to the services basically? राइट। आई थिंक उसमें बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही चैलेंजिंग काम है ये, मतलब हाँ. दोनों प्लस एंड माइनस है एक्चुअली सर्विस में, हम्म. स्पेशली ह्यूमन ओरिएंटेड सर्विस में। Right. क्योंकि हमारे केस में क्या हो रहा था कि हमारे कोचेस, फिटनेस कोचेस, रनिंग कोचेस, डाइटिशियंस, ये लोग गाइडेंस दे रहे थे लोगों को हमारी ऐप के थ्रू। Right. तो अब लोगों की अच्छी बात क्या है कि अगर लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उससे एक बहुत अलग लेवल का कनेक्ट बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बनता है, जो कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से बनाना बहुत मुश्किल है। Right. वहीं दूसरी साइड भी है स्टोरी की कि लोगों की क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी को हमेशा मेंटेन करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज. Right. जो कि टेक में नहीं है। Right. राइट। तो इन दोनों के बीच में हमारे को लाई करना, हमारे को पता है कि एक अच्छी सर्विस कैन लीड टू अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट, while a negative service can do the opposite. Right. तो हमारे केस में इम्पोर्टेंट था, या इस तरीके के किसी भी बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे फाइन मैट्रिक्स बना पाए जहाँ पे कि वो एज मैनी टच पॉइंट्स विद द यूजर को ट्रैक कर पाए। Okay. Right. जहाँ पे भी कोच के टच पॉइंट हैं यूजर के साथ, चाहे वो कॉल पे बात कर रहे हैं, चाहे वो चैट पे बात कर रहे हैं, चाहे वो उनको कोई डाइट प्लान दे रहे हैं, उनको कोई फिटनेस प्लान दे रहे हैं, उसे फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कब इंगेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये सारी इंफॉर्मेशन और ये सारे डेटा पॉइंट्स हम ट्रैक करते Okay. हैं। इसके साथ साथ यूजर का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. आप हमेशा एज एनी बिजनेस ओनर वुड टेल यू, आप हमेशा अपने यूजर्स के पास रहिए, उनसे सुनते रहिए कि उनको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, उनको कोई सजेशन है, उनको कोई तकलीफ है, जो यूजर बोल रहा है वो आपको हमेशा ओपन होना चाहिए, आप हमेशा उसके करीब होने चाहिए, बल्कि इसकी सुन पाए उसकी बात। Right. तो दैट इज वन मोर थिंग दैट वी यूज्ड टू डू कि तो सर्विस ये के दौरान कैसे करते, लाइक हाउ वर यू एबल टू बी क्लोज टू द यूजर कि दे कैन इजीली कन्वे देयर फीडबैक, मतलब कैसे यूजर एक्सेस कर पाता था? यार ऐप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस केस में, ऐप इज सच अ बिग हेल्प। हर यूजर के फोन में हमारी ऐप है, राइट. एंड वो एक ऐसा टच पॉइंट है जो कि यूजर अपनी कन्वीनियंस से और एक सेफ इन्वायरमेंट में रह के आपको फीडबैक दे सकता है। राइट. जब उनको आप उनको इन लिए हमेशा आप पुश नोटिफिकेशन भी भेजेंगे कि उनको याद रहे कि आपको देना है। राइट. आप जब वो ऐप ओपन करें तब भी उनको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि आप 15 दिन हो गए आपकी सर्विस को, आपको कैसा लग रहा है बताइए हमें, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। राइट. किसी ट्रेनर के साथ कॉल हुई उसके बाद भी पूछ सकते हैं। तो राइट. हमने ऐसे स्ट्रेटेजिकली कुछ कुछ टच पॉइंट्स डिफाइन किए हुए थे, ओके. जहाँ पे कि हम टाइम टू टाइम उनसे यूजर से ये फीडबैक लेते रहते थे ओके. और कोशिश करते थे कि जितना ज्यादा ले सके उतना ज्यादा लें। तो वो इसमें अगर थोड़ा सा और डीप जाएं अराउंड फीडबैक, देन आई वुड से देयर आर टू काइंड्स ऑफ टू थिंग्स, पैरामीटर्स इन टेकिंग फीडबैक। अच्छा. वन इज कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, राइट. ठीक है. और दूसरा है कि जब एक बार आप लेते हैं तो उससे कितना डीपली लेते हैं। ओके. तो होता क्या है कि अगर आपका बिजनेस है जो कि कम फ्रीक्वेंटली हाईली डीप फीडबैक ले, हाईली इन्वॉल्व फीडबैक ले, कि आप मेरे को गहराई से बताइए, राइट. है ना, तो वहां पे यूजर का हेजिटेशन टू गिव फीडबैक हाई हो जाता है। ओके. क्योंकि कितनी भी गहराई से, जितनी भी सीरियसनेस से चीज कोई करनी है किसी भी यूजर को, उसकी उतना एफर्ट है वो परफॉर्म करना टास्क। राइट. हाँ, यूजर के पार्ट पे वो एफर्ट है. राइट. तो अगर आप उससे 3 महीने बाद बहुत एक लंबा फीडबैक फॉर्म भेजेंगे तो याद भी नहीं होगा. तो उसको बहुत टेंडेंसी कम होगी, Right. अनलेस के लिए एक्सट्रीमली एसेंशियल सर्विस है तो वो शायद फीडबैक ना दे। अगर राइट. एक्सट्रीमली एसेंशियल है तो वो दे भी देगा, बट अगर नहीं है तो नहीं देगा शायद। राइट. वहीं पे अगर आप उससे हर हफ्ते में बस एक बार ही पूछ ले ये हफ्ता आपका कैसा रहा और 5 स्माइली दे दे, तो वो जरूर कोई स्माइली पे अपना बट दबा देगा। राइट. लो तो फ्रिक्शन अपना. इससे आपको बहुत सारी चीज, बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं जिससे कि आप बहुत सारी अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। राइट.
क्या अब आपने ये जब उसको फीडबैक पूछा 5 स्माइली में ही, हम्म, क्या वो किसी ट्रेनर के साथ कॉल के बाद पूछा? हम्म, तो वो कॉल का फीडबैक हो गया आपका। राइट, अगर चैट के बाद पूछा तो चैट का हो गया। हम्म, किसी भी एक्शन के बाद पूछ रहे हैं तो ये रिसेंसी बायस होता है यूजर्स में। राइट, तो सबसे रीसेंट इंटरेक्शन होगा आपके प्रोडक्ट का, उसका वो फीडबैक दे देगा जब आप पूछेंगे तो। राइट, तो अगर आप फ्रीक्वेंट एंड नॉट एक्सट्रीमली डीप फीडबैक्स कलेक्ट करें रेगुलर बेसिस पे, तो आपको बहुत सारी चीजें यूजर अपने आप बता देंगे कि क्या राइट, सही जा रहा है, क्या नहीं सही जा रहा है। राइट। दिस इज रियली रियली इम्पोर्टेंट इंसाइट एक्चुअली, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता मतलब रियलाइज करते हैं ये चीज़, राइट। आई थिंक ये ऐसी चीज है जो ना आप करने के बाद करने समझ। के बाद में ही समझ में आती है, राइट, तो राइट, आप शुरू में सोचेंगे कि यार मैं बहुत सारी चीजें जानना चाहता हूँ, मैं हम्म, यूजर के लिए डीपली केयर करता हूँ, बट डीपली केयर करना यूजर के लिए ये भी है कि आप उसको बहुत सेफ डिस्टर्ब, इन्वायरमेंट दे आंसर देने के लिए। राइट, उसको अगर ये लगेगा, ये भी अगर यूजर को लगता है ना कि यार ये फीडबैक तो मेरे ट्रेनर को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर सकता है, हम्म, तो भी वो शायद ना दे फीडबैक। राइट, वो नहीं चाहते कि किसी को नेगेटिवली इम्पैक्ट भी राइट, करें, राइट, राइट, अनलेस गड़बड़ हुआ है। राइट, बट वहीं वहां पे वो सेफ इन्वायरमेंट उसको दिया गया कि यार ये लाइट हार्टेड फीडबैक है, आप हमें बताइए, हम सही करेंगे, और बहुत डीप नहीं है या बहुत सीरियस नहीं है, तो लोग उसको आपको देंगे वो आंसर। राइट, कूल। एंड फीडबैक आते थे बहुत सारे, लाइक जैसे 10 फीडबैक प्रॉम्प्ट किया तो कितने फीडबैक आते थे, लाइक परसेंटेज वाइज? आई वुड से मतलब 2-3 कैटेगरी में लाई करता था सृजन ये। ओके, तो हमने यूजर्स की 3 कैटेगरी बना रखी थी। एक थे हमारे जो पावर यूजर हो गए, राइट, फिर एक हो गए हमारे एंगेज्ड यूजर, ओके, और फिर एक हो गए जो थोड़े डिसइंटरेस्टेड यूजर हैं। ओके, तो इन तीनों कैटेगरी में फीडबैक का मैकेनिज्म ओके, और फीडबैक के रिस्पॉन्स रेट अलग थे। राइट, पावर यूजर से आप नियरली, पावर यूजर तो 100% ज्यादा फीडबैक देंगे, वो खुद चढ़ के आपको आके बताएंगे। हाँ कि मैं और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हाँ, वो राइट, खुद आपको चिट्ठी लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे, चैट करेंगे कि ये और करो भी। राइट, फिर आपके जो एंगेज यूजर्स हैं वो आपको देंगे 70-80% फीडबैक देंगे। ओके, और फिर जो आपके डिसइंटरेस्टेड हैं उनको आप थोड़ा पीछा कर रहे होते हो, राइट, राइट, वो आपको 30% टाइप देंगे। ओके, तो ऐसे मिक्स रहता था। ओके, कूल। से काफ़ी डीप हम गए यूज़र फीडबैक में। आई थिंक दिस विल बी द हाईलाइट ऑफ द पॉडकास्ट। ओके, सो उसके बाद हमें ये जानना है कि फिट्सो की जर्नी में हम्म। टर्निंग पॉइंट क्या रहा, जिससे कि इट द ट्रेजेक्टरी वेंट टुवर्ड्स सक्सेस? बिल्कुल। तो किड्सो की जर्नी में दो डिस्टिंक्ट फेज रहे। ओके, एक पहला फेज था जिससे कि हमने स्टार्ट करा, जहाँ पे कि हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे जिसके थ्रू लोग डाइटिशियंस, फिटनेस ट्रेनर्स, रनिंग कोचेस, इनसे कनेक्ट कर सकते थे, इनसे ट्रेनिंग ले सकते थे हमारी ऐप के थ्रू ही, राइट, और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते थे, अपने रन्स ट्रैक कर सकते थे, अपने वर्कआउट्स ट्रैक कर सकते थे, अपने मील्स ट्रैक कर सकते थे हमारी ऐप के थ्रू। राइट, This was the online journey of it, so where it was helping people be fit and healthy through um, uh, थ्रू द ऐप, their fitness regimen through the app. थ्रू द ऐप, ओके, ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और कुछ लोगों के लिए बहुत कम क्या कहते हैं, रिटेंशन है। ओके, एंड हमारा इससे अंडरस्टैंडिंग ये बिल्ड हुई कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हेल्थ और फिटनेस एक्टिविटीज में आपको थोड़े टाइम ही या रिटेन कर सकता है मैक्सिमम जनता को। ओके, वहां पे एक ऑफलाइन टच पॉइंट चाहिए ही चाहिए, ओके, वहां पे कम्युनिटी फीलिंग चाहिए ही चाहिए, कोच के साथ इंटरेक्शन चाहिए, लोगों के साथ इंटरेक्शन चाहिए। एंड यहाँ से हमने एक अपना ऑनलाइन टू ऑफलाइन शिफ्ट ट्राई करा, ओके, एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करा, जहाँ पे हमने कहा कि हम ऑफलाइन सेंटर्स भी अपने ओपन करेंगे और वहां पे इन पर्सन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही होगी। ओके, एंड हमने कहा कि यार इसमें हम स्पोर्ट्स के मीडियम से जाएंगे, क्योंकि अगेन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें कि रिटेंशन बहुत ही जबरदस्त है। किसी भी फिटनेस एक्टिविटी से बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स इंगेजिंग होता है, बहुत राइट, ज्यादा स्पोर्ट्स अडिक्टिव होता है। एंड वो चाहे आप अपना गोल अचीव भी कर लेंगे तो आप स्पोर्ट्स खेलते रहेंगे। राइट,
तो हमने कहा कि स्पोर्ट्स के माध्यम से हम लोगों को फिट करेंगे और ऑफलाइन रूट में जाएंगे, एंड दैट स्विच वाज अ गेम चेंजर। ओके लाइक हमारा पहला सेंटर खोलने से ही लाइक मंथ ऑन मंथ हमारे को अराउंड 5 to 10x का चेंज आ गया विद इन 1 or 2 months। ओके चेंज इन तो टर्म्स ऑफ रेवेन्यू यू आर सेइंग हाँ, रेवेन्यू के अच्छा टर्म्स में। ओके और वो ऐसा हमारे को मॉडल समझ आया कि इतना बड़ा गैप है हमारे कंट्री में और कोई उसको सर्च करने को नहीं बैठा, राइट एंड वी फेल्ट दैट वी हैव फाउंड लाइक द परफेक्ट नीश फॉर अस टू बी इन। राइट और ये गैप पता है अभी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ये स्ट्रांग मुझे है, बहुत मुझे ज्यादा है। अभी भी मतलब ऐसा फील होता है कि घर के पास ऐसा कोई सेंटर नहीं जहाँ पे मैं जाके खेल सकूँ राइट राइट। सो ये ऑफलाइन का तो मतलब इवन दो इट्स सॉल्व्ड इन मेट्रो सिटीज मे बी बट अभी भी मेट्रो सिटीज में भी आई वुड से स्वीडन लाइक जो बिगेस्ट हमारा फोकस था लाइक, और द थॉट प्रोसेस विद व्हिच वी गॉट इनटू इट एट फिट्सो वाज, एक तो आपको सेंटर तो मिले ही मिले, कोचिंग मिले ही मिले, बट आपको पार्टनर भी मिले ओके खेलने के। So राइट that is another very big hassle in sports, which has always been there a problem in sports, especially during adult life, कि आपके पास खेलने के लिए पार्टनर नहीं है। राइट You are always searching for someone. राइट And हम अपनी लाइफ में after we get into jobs, we all get so busy कि टाइम कोऑर्डिनेट करना, प्लेस राइट कोऑर्डिनेट करना, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। राइट So, so it is very important, and this is the thing that we are like super proud of cracking at Fitso, is that हमने लोगों को पार्टनर मिलने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करी है। इट इज द टफेस्ट चैलेंज टू सॉल्व इन स्पोर्ट्स। राइट तो बेसिकली हमारा मॉडल कैसे वर्क करता था कि हमारे थ्रू आप अपनी मेंबरशिप लीजिए ओके और अपना सेशन बुक करके आप जाइए। लेट्स से आप बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, तो प्री फिट्सो डेज आप क्या करते थे कि आप एक कोड बुक करते थे, 4 लोग इकट्ठे करते थे और फिर आप सब 4 लोग उस टाइम पे जाते थे खेलने। फिट्सो में आपको क्या करना है, आपको बस अपना स्पॉट बुक करना है कोर्ट पे, अपने प्रेफर्ड टाइम, अपने प्रेफर्ड सेंटर में आपको चले जाना है। वहां पे हमारे जो कोचेज हैं दे विल एक्ट एज कम्युनिटी मैनेजर्स। वो आपको बाकी लोगों से जो आपके लेवल के हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे और उनके साथ आपको गेम मैच कराएंगे। तो जब भी awesome आपका मन करे awesome आपको model वहां चले जाना है बस, और आपको एक बढ़िया गेम मिलेगा ही मिलेगा। right So that took away such a big, resistance to going to play, or effort that was needed to go to play. जो लोग हमारे साथ फिट्सो के साथ खेल रहे थे, they used to play 8 or 9 times on average with Fitso in a okay month, okay and pre-Fitso they were playing once or twice a month. okay तो right सीधे ये 5-6x का जब हमने देखा, most impactful change in Fitso was this yeah, the most impactful change in that Fitso has brought is this. And ये change Fitso ने drive करा है, which we are like sort of very proud of. right awesome great cool so I think this was kind of a pivot so was there any resistance in your mind or like in discussions that should we do this or not do this like it's kind of a pivot right because Right, it was it definitely. was a I think focus there were shift lots of entirely questions. yeah बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे वो था, ट्रेपिडेशन था इसको चेंज करने के लिए। सबसे पहली बात तो हमने स्टार्टिंग में ही ये वाला मॉडल भी डिस्कस किया था जब हम फिर से स्टार्ट कर रहे थे okay कि हम okay स्पोर्ट्स के थ्रू ऑफलाइन वाले रूट से जाएं। okay उस टाइम हमने डिसाइड किया था कि यार इसमें बहुत ज्यादा ऑपरेशंस है Hmm. और हम चाहते वो थे तो कि है ऑपरेशंस अवॉइड करें और एक टेक प्लेटफॉर्म बने। right हमारा था कि अब क्वेश्चन वापस से था कि यार क्या हम वो ऑपरेशंस लेना चाहते हैं, इससे स्केल को कैसे इम्पैक्ट होगा, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कैसे इम्पैक्ट होगा, और एक स्पोर्ट्स सेंटर को स्टार्ट करने के लिए देयर इज डिसेंट एक्सपेंडिचर। right तो क्या इतना पैसा इन्वेस्ट करा जाए स्टार्ट करने के लिए, ये सारे हमारे सामने क्वेश्चंस थे उस टाइम पे right इनके हमें आंसर्स फिगर आउट करने थे। एंड वी फिगर्ड आउट कि यार यहाँ पे एक सॉलिड नीड नजर आ रही है। द गुड थिंग वाज दैट वी डिड अ पायलट फॉर दिस आल्सो। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में अपने बिजनेस के लिए बात किया कैसे वैलिडेट करना है, right और स्पोर्ट्स वाले मॉडल को भी वैलिडेट करने के लिए एक पायलट किया पहले। okay
तो हमने कहा कि बिफोर वी साइन अप अ सेंटर फॉर आवरसेल्व्स, हम्म जिसका कि पूरा रेंटल का मेंटेनेंस का खर्चा हम ले लें, हम्म उसके पहले क्या हम एक पायलट कर सकते हैं? एंड हमने वो पायलट किया एक स्विमिंग पूल में, एक स्लॉट को, ओके एक 1 आवर के स्लॉट को बाय आउट करके, ओके which was a much less involved expenditure, हम्म and we were able to sign up people for that. हमें पता चला कि कितना मेहनत करके लोग साइन अप होंगे, मार्केटिंग के क्या एक्सपेंसेस आएंगे, हम्म सेंटर को चलाने के लिए हमारे को खर्चों का आइडिया लगा, क्योंकि हम अपनी चला रहे थे। राइट तो हमारे को समझ आया कि क्या खर्चे आएंगे, क्या क्या राइट चैलेंजेस हम फेस होंगे, तो हमारे राइट को बहुत सारी लर्निंग बिल्ड होगी उस पायलट से। एंड उस राइट पायलट के बाद वी वर इन अ पोजीशन टू से कि नहीं, हाँ सही है, करते हैं। राइट तो आई वुड ऑलवेज से, कोई भी आप बिजनेस करें, इवन इफ आप ऑलरेडी कर रहे हैं या नया स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ पिवट करना चाहते हैं, दिस पायलट एंड टेस्टिंग आउट फेज, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि राइट आपको बहुत सारा ज्ञान दे देता है बहुत कम रिस्क लिए। राइट एक्चुअली हाउ विल इट बी, मतलब व्हेन जब पूरा इम्प्लीमेंट होगा तो कैसा होगा उसका थोड़ा आइडिया भी मिल जाता है, बिकॉज एग्जैक्टली। खास करके जो ऑपरेशनल वाली चीज़ें होती हैं उसमें इतने सारे अननोन्स होते हैं जिसके कारण बहुत सारे लोग ट्राई भी नहीं करते ऑपरेशंस ऑपरेशंस बोल के ना, बिकॉज ऑपरेशन इज़ वेरी हार्ड, राइट। राइट। ऑपरेशंस में इतने सारी चीज़ें आपको ऑप्टिमाइज करनी होती है, और अभी अभी रिसेंट टाइम्स में जितने भी बड़े सक्सेसेस हमने देखे हैं, इवन फॉर जोमेटो सक्सेस ऑल्सो लाइज इन ऑपरेशंस, राइट। राइट। बिकॉज जब वो बिकॉज आई हैव सीन राइडर्स का जो पूरा इकोसिस्टम है बहुत क्लोजली देखा है मैंने। सो वो जो पार्ट है ना, वो रेस्टोरेंट का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है जो कि जोमेटो सॉल्व कर रहा है अभी। हम्म। सिमिलरली एंड आई वुड से कि जोमेटो की जर्नी में भी सृजन, बिकॉज आई वाज देयर एट जोमेटो जब हम ये इनिशियली लॉन्च कर रहे थे फूड डिलीवरी। तो जोमेटो के लिए पहला, एट द टाइम ऑफ लॉन्च फूड डिलीवरी, इट वाज लाइक अ कंटेंट प्ले एंड वी कॉल्ड इट ऑनलाइन ऑर्डरिंग। सो द वे वी लुक्ड एट इट इनिशियली वाज कि हम लोगों को ऑर्डर करने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं और डिलीवरी रेस्टोरेंट्स कर रहे होंगे। राइट एंड इवेंचुअली ओवर टाइम हमारे को समझ आया ये कि प्ले ऑर्डर करवाना नहीं है, राइट प्ले डिलीवर करवाना है। डिलीवर कराना है। जब हम लोग बिग बाइट कर रहे थे तो उस समय जोमेटो वाज सेइंग कि हम नहीं करेंगे ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग बिकॉज इट वाज नॉट दैट मैच्योर एंड ऑल। राइट। 2012 की बात है, राइट। सो हम जब करते थे बिग बाइट में, तो हम क्या करते थे कि हम ऑर्डर्स ला के देते थे रेस्टोरेंट को, और रेस्टोरेंट को बोलते थे कि तुम जाके डिलीवर करो, और हमारा कमीशन होता था क्योंकि क्योंकि हम ऑर्डर लेके आ रहे हैं तो हमारा कमीशन, जस्ट लाइक जोमेटो एज वेल। अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है तो मतलब टेक के साथ साथ अगर ऑपरेशंस भी मैनेज करे, जैसे ई कॉमर्स में भी जो है, जो हम अभी देखते हैं, ई कॉमर्स में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो डिलीवरी का है। डिलीवरी राइट। कॉस्ट इज़ वेरी हाई स्टिल। राइट। आई सो थिंक ये जनरली, अगर इसको और ब्रॉडली देखा जाए, हम्म तो ये एक इंडिया स्पेसिफिक चैलेंज है कि जहाँ पे हमारे पास जो सपोर्ट सिस्टम है हम्म वो इतना स्ट्रॉन्ग या इतना मैच्योर नहीं है हम्म कि कोई टेक ओनली बिजनेस रह पाए इन एरियाज में, जहाँ पे राइट एक्चुअली ऑपरेशंस चाहिए, वहां पे ऑपरेशंस इतने मैच्योर है नहीं कहीं पे। राइट तो हमारे को मोस्टली हर जगह हर बिजनेस को फुल स्टैक होना पड़ता है, हम्म ऑपरेशंस का चार्ज लेना पड़ता है। राइट तो दैट इज आई थिंक एन इंडिया स्पेसिफिक थिंग फॉर श्योर। हम्म जहाँ पे अब जैसे आप कहोगे कि ई कॉमर्स में वो जो डिलीवरी का इकोसिस्टम है पूरा, वो अच्छा खासा मैच्योर हो चुका है। हम्म तो अब आप कोई नया ऑनलाइन स्टोर चालू करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे डिलीवरी, शैडोफैक्स, ये सारी ई कॉमर्स पार्टनर्स हैं जो कि आपके लिए डिलीवरीज को टेक केयर कर लेंगे। राइट But अगर आप किसी नई स्पेस में जा रहे हैं राइट तो वहां पे मोस्ट likely आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। राइट एंड उसके लिए आपको फिर जितनी मेहनत कर रहे हो उसका उसका 10x फायदा भी मिलेगा अगर आप उसको पाते हो तो। राइट बिकॉज ये मतलब सच अ यूनिक थिंग दैट यू आर गोइंग टू बी एबल टू डिलीवर व्हिच राइट नोबडी एल्स कैन। राइट बेसिकली अगर टाइम हो डिलीवरी का तब तो फिर मिल भी जाते हैं, बिकॉज उसमें वो फैक्टर कम हो जाता है, वो जो क्वालिटी फैक्टर इतना इम्पैक्ट नहीं राइट। करता, बट खाने के साथ या फिर
कोई भी ऐसी बिल्कुल। चीज़ जो कि इंस्टेंट चाहिए, हम्म तो और उसमें अगर ऑपरेशंस इन्वॉल्व है, हम्म तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई टेक कंपनी है तो वो आगे बढ़ कर के उसको कंट्रोल कर ही ले, हाँ मतलब बिल्कुल। देन इट विल मेक प्रॉफिटेबल सेंस इन दैट केस। 100%। कूल, सही, कूल। सो पिवट करने के पहले यू डिड अ पायलट। सो इन फिट्सो जर्नी देयर वाज अ मेजर रोड ब्लॉक टुवर्ड्स द फाइनल डेज ऑफ कोविड, राइट? कोविड राइट। फेज 1 आया और फेज 2 भी आया, राइट? सो हाउ डिड यू नेविगेट थ्रू, मतलब कोविड फेज 1 और फेज 2 में किस तरह से यू केप्ट योर टीम टुगेदर एंड केप्ट ऑन रनिंग, बिकॉज इट वाज प्योरली फिजिकल बिजनेस, राइट। राइट? राइट। राइट। तो हमारे केस में तो कोविड के पहले जो लॉकडाउन से बिजनेस वाज सॉर्ट ऑफ क्लोज्ड, हम्म बिकॉज स्पोर्ट्स वाज लाइक द वर्स्ट इम्पैक्टेड। हम्म सारे स्पोर्ट्स सेंटर्स बंद थे हमारे। बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का स्विमिंग, वो तो बहुत ही लंबे टाइम तक बंद ही रहा। राइट। वो खुला ही नहीं जब तक सेकेंड वेव जाने के बाद तक, which was 1.5 years or whatever. राइट। तो आई थिंक एट दैट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट था एक तो कि हम खुद बिलीफ रखें। तो दैट इज व्हेन जो हम कहते हैं ना फाउंडर केमिस्ट्री काम आती है, कि यू आर वर्किंग विद पीपल हु यू ट्रस्ट, हु यू हैव फेथ इन, एंड दैट कि अगर हम साथ हैं देन वी गॉट ईच अदर्स बैक। राइट। Nobody is running away, or nobody is going to be anything but 100% involved in this. राइट। And that feeling goes through the team as well. पूरी टीम को वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, हम हैं कर रहे हैं, एंड पीपल लव दैट फीलिंग ऑफ हैविंग अ चैलेंज एंड सॉल्विंग इट। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया, बट इस केस में भी फिट्सो वाज एबल टू रिटेन द एंटायर टीम, इवन दो हम बहुत लोगों की सैलरी कट करी, बहुत मैसिव सैलरी कट्स करी, राइट। बट पीपल स्टक विद फिट्सो। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, हम करेंगे। पीपल इवन ऑफर्ड कि हम बिना सैलरी के काम करेंगे फिट्सो के साथ, बिकॉज दैट वाज द लेवल ऑफ कनेक्शन दैट दे फेल्ट, एंड दे फेल्ट द बिलीफ इन अस एज फाउंडर्स कि हम कोई सोल्यूशन निकालने के लिए लगे हुए हैं और हम करेंगे। राइट। व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग एट दैट टाइम वाज, वी न्यू कि यार स्पोर्ट्स अभी से एक्सटर्नल सेंटर्स पे तो बंद ही है, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स वर स्टार्टिंग टू हैपन अराउंड पीपल एंड देयर होम्स। राइट। तो हमने अपने 2-3 मॉडल निकाले, जहाँ पे कि हमने सोसाइटीज के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अपना वहाँ पे कोचेस को भेज के वो उनको मैनेज करना शुरू करा। ओके। कि हम आपके सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ट्रेनिंग देंगे, सोसाइटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करेंगे, वहाँ पे अपना बुकिंग सिस्टम डिप्लॉय करेंगे। उनको जो सेम एक्सपीरियंस हम अपने फिट्सो के सेंटर पे दे रहे थे, वो हम अलग अलग सोसाइटीज में जाके देंगे। ओके। तो ये वाले पायलट से हमारे को एक बहुत अच्छा सक्सेस मिला कि कई सारी सोसाइटीज ने साइन अप कर लिया, क्योंकि अब लोग भी बाहर नहीं जा सकते, तो सबको अपने सोसाइटी का ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना है। राइट। तो दैट बिकेम द नीड। राइट। और सब लोग हेल्थ कॉन्शियस भी पहले से थोड़ा ज्यादा थे। एग्जैक्टली। राइट। एग्जैक्टली। तो वो दैट वाज अ न्यू अपॉर्चुनिटी दैट ओपनड अप कि ये मॉडल सोसाइटी बाय सोसाइटी पेनिट्रेट करे, एंड वो हमने किया। सो दैट मेड श्योर कि हमारा बिजनेस इज कंटिन्यूइंग। राइट। So we never like doing this, or दैट our वाज वेरी online वेरी क्रिएटिव थिंकिंग एक्चुअली। training through the app, उसका भी बहुत बज आया था। राइट। वो भी हमने करा कि भाई राइट। आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो, आप कैसे अपने स्पोर्ट्स से कनेक्टेड रह सकते हो राइट। टू द कन्फाइंस ऑफ योर हाउस और सोसाइटी। ये राइट। ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो, एंड मेकिंग श्योर दैट we are engaging our team and making money even in this adverse time. That helped us like get through the worst of COVID. Okay. Cool. So I think we've covered a lot of things, और बहुत यूजफुल और बहुत ही इंसाइटफुल चीज़ें हमने डिस्कस की है। Hmm. So final final advice for people who are in their startup journey right now? Yeah, I think एक कोई single advice for a large section of people, I don't know,
कि वो क्या होगी। अगर आप ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को समझते हैं। राइट। बट आई थिंक द एज ओल्ड क्लीशेज जो है ना, कि आप अपने कस्टमर को गहराई से समझिए, आप उनकी प्रॉब्लम्स को डीपली अंडरस्टैंड करिए, राइट। एंड उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ओपन माइंडेड तरीके से हमेशा रहिए कि मेरा जो सोल्यूशन है, अगर वो बहुत अच्छा चल रहा है, अमेजिंग। अगर वो मे बी नहीं चल रहा है, तो देर इज ऑलवेज सम रूट अराउंड। राइट। तो एज लॉन्ग एज यू आर कनेक्टेड टू द मिशन कि मेरी कस्टमर की ये प्रॉब्लम है और मेरे को ये सॉल्व करनी है, एंड नॉट वरीड अबाउट कि इसी तरीके से करनी है या उसी तरीके से करनी है, इस ये एक पर्टिकुलर मैंने रास्ता चुन लिया तो मैं इस पे ही स्टिक रहूंगा। आपके पास हमेशा देर आर वेज टू गेट टू द गोल। यू जस्ट हैव टू बी गोल ओरिएंटेड एंड नो व्हाट द कस्टमर वांट्स। जब तक वो हो रहा है, तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, नमन। काफ़ी टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे थे इस पॉडकास्ट को करने की, बट एंड नहीं, it बिकॉज was इट great for me also, Srijan. Thank you for having me. Thank you for या pushing me and making sure I got here. ग्रेट। सो हम और भी एपिसोड्स करेंगे फ्यूचर में, कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के, जब हम जहाँ पर हम और डीपली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। So that was it for this episode of Let's Optimize. So thank you so much for listening. Take care. Bye bye. Thank you. New way.